वेल, आइए बिजनेस मैथमेटिक्स में आज डिस्कस कर रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, और अगर हम देखें इफ C is equals to fx is the total cost function, is the total cost function, then average cost क्या होगा? Average cost is C divided by x, यानी that fx को fx divided by x, that is the average cost, correct? अब टारगेट हमारा क्या है कि इस एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना। जानते हैं आप, हर पर्सन चाहता है, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। तो फॉर average cost to be minimum, what we have to do? We use the calculus, and using that calculus we find the derivative of that average cost. Put that average cost, derivative of average cost equals to 0. Put the derivative of that average cost is equals to 0, and then I'm writing the procedure. Find the value of x for which the derivative of average cost is 0. Then at that level of x, or at that value of x, our double derivative d square by dx square of this average cost should be a positive quantity. ठीक है, simple process. If cost is given, find the average cost, find the derivative of that average cost, put equal to 0, find the value of x, and then at that value of x show that the double derivative of that average cost is greater than 0, mean a positive quantity. Is it fine? This is the whole procedure to find out the minimization of average cost. आइए कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. Start with the problem. Right, this is the problem. The manufacturing cost of an item consists of 1000 as overheads, material cost rupees 2 per item produced, and this is the labor cost. Right? It means the total cost, which is represented by Cx, have overhead cost as rupees 1000 plus, if number of items produced are x, then the material cost will be 2x, plus labor cost for producing x items is given by x square by 90. तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन आ गया जी. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Find how many items be produced to have average cost as minimum. It means we have to find out the average cost first. Average cost will be equal to total cost divided by x. Mean इसे आप x से डिवाइड कर दीजिए. Divide this expression by x. 1000 over x, 2x divided by x,
which gives 2. X square over 90 divided by x, that is x over 90. This is the एवरेज कॉस्ट. अब इस एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, वी हैव टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट. करेक्ट. अब इसके लिए क्या करें? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एवरेज कॉस्ट. डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एवरेज कॉस्ट. Mean find the derivative of this expression. This one. 1000 is a constant. Derivative of 1 over x. This is 1 over x. So derivative of 1 over x is minus 1 over x square plus 2. Derivative of this constant 2 is 0 plus 1 upon 90 as constant, and the derivative of x is 1. What we get? Minus 1000 over x square plus 1 over 90. This is the derivative of average cost. अब क्या करें? Put this derivative of average cost is equals to 0. Put d by dx of this average cost is equals to 0, or minus 1000 over x square plus 1 over 90 equal to 0, or you can write it as minus 1000 over x square equals minus 1 over 90. So x square is equals to 90,000, or x is equals to 300. X equal to 300 is the value of x at which the derivative is equals to 0. अब हमको क्या शो करना? That the double derivative at x is equals to 300 is a positive quantity, right? तो ये जो सिंगल डेरिवेटिव किया, इसका एक डेरिवेटिव और कर लीजिए. अब देखिए, सिंगल डेरिवेटिव को मैं थोड़ा और बेटर लिखता हूं. मेरे पास है नेगेटिव 1000 एक्स स्क्वायर अपॉन में है, इसे ऊपर ले जाता हूं. आपको डेरिवेटिव ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा इससे. करेक्ट. नेगेटिव 1000 एंड एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 ओवर 90. अब डबल डिफरेंशिएशन हमने इस एक्सप्रेशन का करना. राइट. नाउ we find d square by dx square of this average cost, which gives me minus 1000. आपके पास ऑलरेडी है. डिफरेंशिएशन x टू द पावर नेगेटिव 2 का करेंगे तो नेगेटिव 2 को आगे लाइए, x टू द पावर एक और कम कर दीजिए, नेगेटिव 3, और 1 over 90 डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 0. तो मेरे पास आ गया 2000 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, राइट. और अगर इसमें x का वैल्यू 300 पुट करेंगे तो दैट इज क्लियरली ए पॉजिटिव क्वांटिटी. ये प्लस की क्वांटिटी आ गई जी. तो डबल डेरिवेटिव प्लस का आ जाना ही एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, दैट इट गिव्स मी द मिनिमम. तो वी गॉट मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 300. क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी आइटम शुड बी प्रोड्यूस्ड. इट मीन द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड विल बी 300. दैट मेक द एवरेज कॉस्ट एज मिनिमम. इज इट फाइन? ठीक. आइए और प्रॉब्लम्स भी करते हैं हम आपके साथ. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन इज हेयर. एक और क्वेश्चन देखते हैं. आइए देखिए क्या कहता है जी क्वेश्चन. ए कंपनी प्रोड्यूसेस x यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द टोटल कॉस्ट.
This is the total cost function, which is 1/3 x cube minus 18x square plus 160x. करेक्ट. तो दिस इज द प्रॉब्लम. अब क्वेश्चन क्या पूछा? कम टू द फर्स्ट पार्ट. कितना द आउटपुट एट विच द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मीन डेरिवेटिव ऑफ दिस टोटल कॉस्ट. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टोटल कॉस्ट. इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए. दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट. 1/3 derivative of x cube is 3x square minus 36x plus 160. 3 से 3 cancel. x square minus 36x plus 160. This is the expression for marginal cost. X square minus 36x plus 160. Is it fine? हमको मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम शो करना है. इट मीन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मार्जिनल कॉस्ट. अब उसको मिनिमम करने के लिए इस मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव करें पहले, विच इज 2x माइनस 36. उसे इक्वल टू 0 पुट करें. उससे x का वैल्यू आएगा जी मेरे पास, दैट इज 18. डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 18. अब हमने शो करना है एट x इक्वल्स टू 18 द मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम. इसका भी डेरिवेटिव अभी एक और करना पड़ेगा मुझे. डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस मार्जिनल कॉस्ट. इसका डेरिवेटिव कर लीजिए. एक ऑलरेडी डेरिवेटिव पहले से किया हुआ है. इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. तो डबल डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट का पॉजिटिव क्वांटिटी मीन वी हैव ए मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 18. यानी x इक्वल्स टू 18 यानी नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड 18 हो जिस पर मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू मिनिमम होगा जी. करेक्ट. तो यहां पर लिखते हैं जिसको कि मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 18. इज इट क्लियर? राइट. Sorry. Marginal cost is minimum at x is equals to 18. So this is the answer for the first question. Now come to the second one. The output at which average cost is minimum. So this is the cost function. Average cost को पहले निकालना है मुझको. Average cost is cx divided by x. Divide this expression by x. 1/3 x से डिवीजन करेंगे x स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 160. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज कॉस्ट. अब इस एवरेज कॉस्ट को भी उसी तरह से मिनिमाइज करना है मुझे. डेरिवेटिव निकालना है मुझे. डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एवरेज कॉस्ट 1/3. इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं. 1/3 2x हो जाएगा माइनस 18. देन पुट कीजिए इसको इक्वल टू 0. पुट दिस डेरिवेटिव ऑफ द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 0. कितना है ये? 2/3x minus 18 equal to 0. It means 2/3x is equals to 18. X is equals to 18 into 3 divided by 2, which is 27. Which is 27. Is it fine? अब इस x is equals to 27 पर
ये डबल डेरिवेटिव करो जी इस एवरेज कॉस्ट का, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस एवरेज कॉस्ट वो कितना आएगा, दैट विल बी ओनली 2/3, क्योंकि 18 का करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये मुझे दिख रहा है पॉजिटिव जी। तो एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 27. एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 27. अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है मेरे पास जी। क्या है वो थर्ड पार्ट? उसमें कहते हैं आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब ये देखिए, ये एवरेज कॉस्ट का एक्सप्रेशन था मेरे पास और ये मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट का एक्सप्रेशन था, इन दोनों को इक्वल पुट करना है जी। थर्ड में मुझे बोला इन द थर्ड पार्ट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का मेरे पास एक्सप्रेशन जो आया दैट इज 1/3 x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 160, और जो मार्जिनल कॉस्ट का एक्सप्रेशन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 160। करेक्ट, इतना ही था क्या? 1/3 x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 160, राइट, and the marginal cost is this is the marginal cost, x square minus 36x plus 160. Right, now 160 cancel from both the sides, we got 1/3 x square minus x square minus 18x plus 36x is equals to 0. ये मेरे पास आ गया जी 2/3 x square प्लस 18x इज इक्वल्स टू 0. x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसमें से वी गॉट माइनस 2/3 x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, या तो आपके पास आ गया x इज इक्वल्स टू 0, और वी गॉट 2/3 x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. दैट ऑल्सो गिव्स x is equals to 27. That also gives x is equals to 27. x equals to 0 हो सकता है, ये x is equals to 27. तो 0 तो पॉसिबल नहीं है जी। तो x equals to 27 पर marginal cost is equals to average cost. So at x is equals to 27, average cost equals marginal cost. Is it fine? Right. So this is the problem number 2 in this section. आइए क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखते हैं जी, पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें कहते हैं द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर एंड ₹48 per hour when the speed is 16 kilometers and other cost to ₹300 per hour. आइए जी देख सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज किया लेट v किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड एंड c इज द कॉस्ट. लेट v किलोमीटर per hour is the speed and c is the cost. ठीक है, अब देखिए जब क्वेश्चन को समझिए, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ, c is the cost of fuel. So that this cost in c is proportional to the square of the speed, यानी c ये प्रोपोर्शनल का साइन
इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी जिसे भी आपने बोला, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, c इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अब c इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम v स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके हमने ये कांस्टेंट लगा दिया जी। तो c इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, k इंटू वी स्क्वायर, k इज कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, करेक्ट। आपको गिवन है 48 कॉस्ट है जब स्पीड 16 है, तो c का वैल्यू 48 बोला और स्पीड का वैल्यू बोला आपको 16, पुट कर दिया मैंने यहां। आपने बोला व्हेन v इज इक्वल्स टू 16, c इज इक्वल्स टू 48। तो इस एक्सप्रेशन में मैंने पुट कर दिया, इससे मेरे पास k का वैल्यू निकल आने वाला है जी। तो k इज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर मीन 16 इंटू 16। तो k का वैल्यू आपके पास आ गया 3 डिवाइडेड बाई 16। इज इट फाइन? इट मीन आवर कॉस्ट, द रनिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 16 इंटू वी स्क्वायर, करेक्ट। अब बोलता है द अदर कॉस्ट अमाउंट इज ₹300 पर आवर। तो टोटल कॉस्ट पर आवर आपको कितना हो जाएगा? दिस 300 प्लस दिस। टोटल कॉस्ट जो आपके पास हो जाएगा, द टोटल रनिंग कॉस्ट पर आवर दैट विल बी इक्वल टू दिस 300 प्लस दिस। टोटल रनिंग cost per hour is equals to 300 plus 3 upon 16 v square, correct। तो दिस इज द टोटल रनिंग कॉस्ट पर आवर आपके पास आ गया, करेक्ट, राइट। नाउ if we suppose that S is the distance covered with स्पीड v, यानी इतना दूर आप गए इतनी स्पीड से जी, ठीक है। तो कितना टाइम, कितने आवर्स लगे, देन द नंबर ऑफ आवर्स विल बी, डिस्टेंस को आपने स्पीड से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास टाइम आ गया। तो इतना टाइम ऑफ जर्नी है, दिस इज द टाइम ऑफ जर्नी, और ये 1 आवर का कॉस्ट है, और इतने आवर में कितना कॉस्ट हो जाएगा टोटल, इसे और इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी। दैट विल बी इक्वल टू, ये टाइम आपके पास है और ये 1 आवर का कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 आवर। 300 3 अपॉन 16 वी स्क्वायर, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जर्नी। अब इस टोटल कॉस्ट को आपको क्या करना है? मिनिमाइज। उसके लिए फिर उसी तरीके से आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने उस ब्रैकेट को खोला, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें जो ये S मेरे पास प्रेजेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। आपको अब डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि इस टोटल कॉस्ट को हम लोग मिनिमाइज करने की इच्छा रखते हैं, तो हमको डेरिवेटिव कर लेना चाहिए
v के रेस्पेक्ट में ऑफ दिस टोटल कॉस्ट। तो आपके पास ये 300 एंड s, दिस इज द कांस्टेंट। 1/v का डिफरेंशिएशन करता हूं, सॉरी 1/v का -1/v² प्लस 300, 3/16 s is constant, differentiation of v is 1। सिंपल डेरिवेटिव हो गया मेरे पास। अब इसको जीरो के इक्वल पुट कर रहे थे जी, पुट d/dv ऑफ दिस टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि कितना आ जाएगा मेरे पास -300s अपॉन v² प्लस 3/16s इक्वल्स टू 0। तो s तो फिनिश हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा -300 अपॉन v² इज इक्वल्स टू -3/16, राइट। इट मीन 3 से 3 कैंसिल कीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कीजिए, ये 100 आ जाएगा जी यहाँ पर। तो v² इज इक्वल्स टू 1600, तो v विल बी इक्वल टू 400। v का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया जी, दैट इज इक्वल टू 400। इज इट फाइन? दैट इज नॉट 400, दिस इज 40, राइट। तो स्पीड आपके पास 40 के इक्विवेलेंट होना चाहिए जी, लेकिन इस लेवल पर हमने बताना है द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, वो भी नहीं निकाला जी हमने। उसके लिए हमें इसका एक डेरिवेटिव और करना पड़ेगा जी। वी फाइंड d²/dv² ऑफ दिस टोटल कॉस्ट, कितना आया था जी मेरे पास -300s, ये तो कांस्टेंट है, ये v² है और अपॉन में है। अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो ये मेरे पास v⁻² आ जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी -2v⁻³ एंड 3/16 इज कांस्टेंट, दैट गिव्स मी 0। तो आपके पास आ गया पॉजिटिव 600s डिवाइडेड बाय v3, करेक्ट। तो पॉजिटिव 600s डिवाइडेड बाय v3, जो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें अगर मैं v की वैल्यू 40 पुट करूंगा तो मेरे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो आपने बोला सो एट v इज इक्वल टू 40, यानी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द व्हीकल that is 40, at which the total cost will be minimum. At v is equals to 40, total cost is minimum. Is it fine? एक बार फिर समझते हैं इस प्रॉब्लम को। इसमें हमसे क्या बोला गया था, cost of running an engine is proportional to v², c is proportional to v² लिखा मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया मैंने, k लगा दिया। फिर मुझे गिवन था कि व्हेन स्पीड इज 16 कॉस्ट इज 48, तो c की जगह 48 पुट किया, v के प्लेस पर 16, मेरे पास k का वैल्यू 3/16 आ गया। तो ये जो फंक्शन मेरे पास c इज इक्वल टू k इंटू v² है, इसमें मैंने k का वैल्यू पुट कर लिया। कितना, कुछ और कॉस्ट भी है, ये तो रनिंग कॉस्ट है, उसके अलावा कुछ कॉस्ट और भी है, दैट इज 300 पर आवर। तो 300 पर आवर दिस प्लस दिस, दोनों को प्लस करके टोटल रनिंग कॉस्ट हो गई पर आवर की। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने सपोज किया कि हमने जो उस इंजन को चलाया वो s किलोमीटर तक चलाया जी, किस स्पीड से, v की स्पीड से। कितना टाइम लगा जी, s को v से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास कॉस्ट थी 1 आवर की, और s डिवाइडेड बाय v, इतने आवर्स तक मैंने उस इंजन को चलाया, तो इन दोनों को मल्टीपल कर लो, तो 1 आवर की कॉस्ट से टोटल आवर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ जर्नी आ गई मेरे पास। अब इस टोटल कॉस्ट ऑफ जर्नी को मुझे मिनिमाइज करना है,
उसके लिए मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया जी इस टोटल कॉस्ट का, इक्वल टू 0 पुट किया, v का वैल्यू 40 आया जी, फिर डबल डेरिवेटिव करके इस डेरिवेटिव को मैंने पॉजिटिव शो किया, जो बताता है कि मिनिमम कॉस्ट हो गई जी। इज इट फाइन? करेक्ट। तो इतना ही रहने देंगे इस सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।